स्टार्ट। माननीय सभासदों, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, Good morning, all the members. We have gathered here to do some important affairs. So today's first business is oath or affirmation. Secretary General, please proceed. Yes, madam. Ms. Bharti Yadav, who stands elected from Sonipat, constituency of Haryana, will now take oath or affirmation. Ms. Bharti Yadav. Madam, do you wish to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Sanskrit, please. अहं भारती यादव लोकसभाया सदस्येन केवल निष्कासितः निश्चयेन फलकस्य नामनाशे यत् अहं विज्ञानस्थापितां भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यत् अहं भारतस्य सम्पूर्णप्रभुत्वं अखण्डतां च रक्षामि यदा तत् पदं ग्रहणे अहम् उद्यतो अस्मि तत् कृत्यानि श्रद्धापूर्वक निष्ठामि। Honorable members, as we meet today, it is my sad duty to inform the House of the demise of Sri M. S. Swaminathan. He was an Indian technologist, agricultural scientist, and administrator. Swaminathan was a global leader of green revolution. He has been called the main architect of green revolution in India for his leadership and role in introducing and further developing high-yielding varieties of wheat and rice. माननीय सदस्यगण, मैं एमएस स्वामीनाथन के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस व्यक्ति के संपर्क में आने का सौभाग्य मुझे मेरे पत्रकार जीवन के प्रारंभिक वर्षों में प्राप्त हुआ। वह हरित क्रांति के वैश्विक नेता थे। गेहूं और चावल की उच्च उपज करने वाली किस्मों को पेश करने और विकसित करने में उनकी नेतृत्व और भूमिका के लिए भारत में उन्हें हरित क्रांति का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। उनका योगदान लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में अतुल्य है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन में बैठे सभी सदस्यों को मेरी तरफ से सुप्रभात। महोदय, मैं आपके एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में स्वयं को सहयोगित करती हूँ। श्री एम एस स्वामीनाथन जी का निधन आम आदमी और हमारे लोकतंत्र के लिए सचमुच में एक गहरी क्षति है। He was truly an uncommon man, rightly representing the common man. I request the House to stand in silence for a while to express a deep sorrow. Secretary General, may convey the message of condolences to the bereaved family. Yes, madam. Prime Minister to introduce new minister. महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से अपने साथी का सदन में परिचय करवाना चाहती हूँ। सुश्री प्रिया शर्मा, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री। सुप्रभात, मैं प्रिया शर्मा आज से अपने कार्यभार को निष्ठा के साथ निभाऊंगी। धन्यवाद। Now the question hour commences. Question number 401. श्री अखिलेश भैया। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं? मेरा दूसरा सवाल, तथा सरकार की ओर से इस संदर्भ में क्या नई योजना एवं प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं? धन्यवाद। Honorable Minister of Human Resource Development. Yes, sir. In reference to first part of your question, the number of women students enrolling for higher education in India has shot up. The women enrollment in higher education, which was less than 10% of the total on the eve of independence, has risen to 44.4% Goa, with 61.2% top in terms of women enrollment, followed by Kerala 56.8. Maintain the decorum of the House, please. मैं सदन में बैठे अपने साथी का ध्यान एक और
वेबसाइट www.mhrd.gov.in। वैसे मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, हमारी सरकार द्वारा कंप्यूटर शिक्षा की भी योजनाएं लागू की गई हैं। अब आगे आपके दूसरे प्रश्न पर। As regarding the questions about the schemes introduced, the Department of Education in 1961-62 introduced Nation Merit Scholarship to provide financial assistance to meritorious students to low-income families to meet a part of their day-to-day expenses while pursuing higher education, and during 11 5-year plan period, it has an approved outlay of ₹1,000 crore. The scheme is awarded on basis of result of senior secondary exam, and out of 82,000 fresh scholarships per annum, 41,000 are for girls. Second, the Government of India has recently approved a scheme to provide full interest subsidy during the period of moratorium, i.e. the course period, plus 1 year or 6 months after getting job, whichever is earlier, on loans taken by students from Schedule Banks. Third, the government has recently announced postgraduate Indira Gandhi scholarship for single girl child to support postgraduate education for single girl child in non-professional courses. Thank you, madam. Next question, question number 402. Shri Paraminder Sandhu. Honorable Speaker, Madam, an eminent Hindi daily recently reported the gift of fertilizers to the crew on the occasion of his marriage by his son-in-law in Haryana. Will the Ministry of Agriculture be pleased to state availability of fertilizers to the farmers of Haryana for Rabi crop season of 2024-2025? If there is no shortage or black marketing of fertilizers, then why the farmers in Haryana are agitating? Honorable Minister of Agriculture. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष 2023-24 के राबी फसल के लिए खाद की उपलब्धता की स्थिति कुछ इस प्रकार है। यूरिया मांग 17,196 मैट्रिक टन और उपलब्धता है 18,280 मैट्रिक टन। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट मांग 4,726 मैट्रिक टन और उपलब्धता है 5,132 मैट्रिक टन। ये आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि इस तरह की कमी का कोई प्रश्न नहीं उठता। मंत्रालय की ओर से निर्देश के कारण खाद की पूर्ति चरणों में यथाक्रम की जाती है तथा आजकल बाहरी कोहरे के चलते यातायात बाधित रहता है। कोई कालाबाजारी में जमाखोरी की रिपोर्ट नहीं की गई है तो बिना किसी जांच के कोई बात संसद में कहकर संसद का समय बर्बाद न करें। आप शायद भूल रहे हैं कि किसानों को शिक्षा में सुविधा प्रदान करना हमारी सरकार की नीति है। Next question, question number 403. श्री प्रकाश भंडारी। कौन किसी का भी करेगा, असल ये आदम का प्रश्न है। बच्चे सड़क पार के इसी पर किसी के दिल का सुकून है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हमारे रक्षा मंत्री को तस्दीक करेंगे कि विगत 3 वर्षों के दौरान भारत पाकिस्तान की सीमा पर गोलाबारी में कितने नागरिक एवं जवान शहीद हुए हैं? सरकार की ओर से शोक संबद्ध परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया और सरकार की ओर से इस प्रकार की गोलाबारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे? Honorable Minister of Defence. माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं अपने विपक्षी साथी को ये बताना चाहूंगी कि देश में होने वाले छोटे से छोटे कार्य की भी जानकारी सरकार के पास होती है। अब रहे आपके पहले प्रश्न के उत्तर की बात, तो विगत 3 वर्षों के दौरान भारत पाकिस्तान सीमा पर गोलाबारी और शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों एवं नागरिकों के ब्यौरे नहीं हुए। शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों की संख्या 2022 में 5, 2023 में 12 और 2024 में 5 रही है। वहीं मारे गए नागरिकों की संख्या 2022 में 4, 2023 में 3 और 2024 में 4 रही है। इस प्रकार की घटनाओं में शहीद हुए जवानों के परिवारों को 15 लाख रुपए तक का एक मुश्त मुआवजा देने का प्रावधान है। सेना सामूहिक बीमा निधि के अंतर्गत अफसरों एवं जेसीओ एवं अन्य सुरक्षा कर्मियों को क्रमशः 50 लाख एवं 25 लाख रुपए की बीमा निधि देने का प्रावधान है। कतिपय मामले में मृतक सशस्त्र सेनानियों के क्रमिकों के परिवारों को विभिन्न सरकारी स्रोतों जैसे कि प्रधानमंत्री राहत कोष एवं मुख्यमंत्री राहत कोष आदि से भी राहत मुहैया कराई जाती है। भारतीय सेना द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए यथाउचित प्रतिकार किया जा रहा है तथा केंद्र सरकार द्वारा भी इस प्रकार की मामलों के बारे में पाकिस्तान सैनिक अधिकारियों के साथ हॉटलाइन ध्वज बैठक के अंतर्गत साप्ताहिक वार्ताओं के स्थापित तंत्र के जरिए यथोचित स्तर पर उठाया जा रहा है। आशा करती हूँ मेरे साथी को उनका संतोषजनक उत्तर मिल चुका होगा तथा आने वाले भविष्य में वो ऐसा ना ही सोचें कि सरकार को किसी देश में हो रही घटनाओं के बारे में पता नहीं होगा। धन्यवाद। Next question, question number 404. इस रतन में
has asked all the concerned to inform the council about any unethical act or medical misconduct. If so, where are the details? Honorable Minister of Health and Family Welfare. Honorable Speaker, ma'am, the government is implementing comprehensive legislation, the prenatal diagnostic technique use and prenatal conception, Prohibition of Sex Selection Act 1994, the rule from there under the Prohibition of Sex Selection before or after consumption of regulation, prenatal diagnostic technique use and preventions of the misuse of a sex determination to the living female forticide. The Medical Council of India has issued all instructions to the lead principal of all medical colleges, health directors, general health, all state medical council and all health principal secretaries to take action regard to any complaint and received against medical practitioners for accepting commission prescription oil, ultrasonography, investigation, illegal abortion, snacks, drugs, etc. As per instruction is concerned, the state medical council should take information and even still order and notify the action taken by the local newspaper and put it to notify the action taken by them in the local newspaper. Under implementation of the Medical Council of India, further the government has launched Beti Bachao Beti Padhao scheme to curb the manic of female forticide and balance the decline of the sex ratio. Thank you. Papers to be laid on the table by members. Minister of Social Justice and Empowerment to lay a copy of notification and annual report for the year 2024-25. Madam, I beg to lay on the table a copy of the annual report, Hindi and English versions for the year 2023-2024. Okay, sir. Secretary General to report message from Upper Chamber of Youth Parliament. Madam, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of Youth Parliament. In accordance with the provision of the rules of procedure and conduct of business in the Upper House of Youth Parliament, I am directed to enclose a copy of the Prevention of Crimes in the Name of Order and Tradition Bill 2000, which has been passed by the Upper Chamber as is sitting held on 5th Jan 2015. Secretary General to lay on the table a copy of bill as passed by the Upper Chamber. Madam, I lay on the table of the House the Prevention of Crimes in the Name of Order and Tradition Bill 2010 as passed by the Upper Chamber. Honorable members, I have to make an announcement. On my behalf and on behalf of the honorable members of the House, I have great pleasure in extending a warm welcome to a delegation constituent of Constituent Assembly of Nepal, who are on a visit to India as the honored guest. The honorable members of the delegation are Prachi Bhatt and Siddharth Koirala. Now, let us take up the calling attention motion. I invite Mr. Swinder Kaur to call the attention of Minister of Information and Broadcasting to the unprecedented resignation by members of Central Board of Film Certification, citing bureaucratic interference, corruption, and corruption. Mr. Swinder Kaur. Honorable Speaker, Madam, I would like to call the attention of Ministry of Information and Broadcasting for dramatic development in which Central Board of Film Certificate Chief and other 8 members quite sitting political interference and coercion. The Chief has stated total interference on every film, big and small. In the present instance, the Chief added pressure religious groups in a film by a religious leader. In the Constitution of India guarantees freedom of expression under the Article of 91A, and the board is an independent autonomous statutory body incorporated under by the Article of the Parliament. And my question is why this fundamental is violated by any kind of religious leaders. Thank you. Please. Honorable Minister of Broadcast and Information. Honorable Speaker, I would like to inform the House that there is no interference in board functioning by the government. I request the members to approach the government with concrete evidence of political interference. Thank you. Now, let us take up a motion on coercive religious conversion by leader of opposition for a debate in the House. Leader of
ही आम बात हो गई है। उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब में एक ईसाई गांव को धमकी दी गई कि अगर उन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया तो उन 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और तो और पाकिस्तान में भी प्रत्येक वर्ष 1,000 से अधिक लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है और उनसे कहलाया जाता है कि वह जन्म से हिंदू। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, परंतु मैं मुसलमान के रूप में मरना जरूर चाहूँगी। लेकिन आप सबको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा भारत भी इन कामों में बिल्कुल पीछे नहीं है। त्रिपुरा में एक गिरजाघर ने आदेश किया कि यदि हिंदुओं की जनसंख्या को कम करना है तो या तो उनके बच्चों को जान से मार दिया जाए या फिर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाए। अभी हाल ही की बात है कि हम कितना ही पीछे जाएं, 350 गरीब मुसलमानों को हिंदू बनाया गया, यह कहकर कि ये घर वापसी है क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। अब आप लोग ही मुझे बताइए कि क्या हमें अपने पूर्वजों के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए? किस तरह से ये सही है? आप लोग जानते ही हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। डीएनए रिसर्च बताती है कि पहला इंसान साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था, तो अब क्या उससे जाके पूछना कि उसका धर्म क्या था? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हम धर्म के नाम पर इंसानियत को भूलते जा रहे हैं? धर्म के नाम पर हैवानियत का गंदा खेल खेला जा रहा है, बंदूक की नोक पर धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब कहाँ गए आपके वे कानून? और यदि ये कानून कम पड़ते हैं तो और कानून बना दीजिए, लेकिन धर्म के नाम पर हो रहे इस कत्लेआम को रोकिए, वरना भविष्य में ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। लेकिन मोहतरमा, मैं आपको एक और बात बता दूं, केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होता, उन्हें लागू भी करवाना पड़ता है। आप लोग चाहते हैं कि हम विकास में आपका साथ दें और धर्म के नाम पर हो रहे इस कत्लेआम को नजरअंदाज कर दें? कदापि नहीं। अरे नजरअंदाज करना तो कोई आप लोगों से सीखे। हमें ऐसे विकास की कोई जरूरत नहीं जहाँ पर इंसान की जान की कोई कीमत ना हो। शायद आप लोग भूल रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हमारे भारत को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए और विकसित बनने के लिए किसी भी आध्यात्मिक परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भला बुरा ना कोई रूप से कहता है कि दृष्टि में स्वयं दोष गुण दिखलाता है। कोई कमल की कली को देखता है कीचड़ में, तो किसी को तो चांद में भी दाग नजर आता है। मिस प्रीतिमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्मृतिमान माननीय सभासदों का ध्यान हाल ही में हुई घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए भारतीय व्यवस्था पर तर्क करते हुए कुछ इस प्रकार आकर्षित करना चाहूँगा। ठहरो कहने वालों, भारत को भारत रहने दो, यदि भला चाहते हो अपना तो गंगा को सीधा कर दो। मैं यह बताना चाहूँगी कि यह बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कोई बात नहीं है, यह प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। टीपू सुल्तान के समय 18वीं शताब्दी में 4 लाख लोगों का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाया गया तथा हिंदुस्तान पाकिस्तान के समय जब हिंदू नरसंहार हुआ तब भी हजारों हिंदुओं का बलपूर्वक इस्लाम में परिवर्तन करवाया गया। 20वीं शताब्दी में भी हजारों कश्मीरियों को इस्लाम में परिवर्तित किया गया। अब हाल ही में यूपी में 120 मुस्लिम परिवारों और चेन्नई में 11 दलित ईसाई परिवारों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको नहीं लगता कि हमें नए कानून की आवश्यकता है इस महामारी को रोकने के लिए? क्या जो कानून आप लोगों ने बना रखे वो काफी है या यूं कहें कि वो भी अधिक है? और अंत में मैं कहना चाहूंगी, कत्लेआम हो रहा है गौतम बुद्ध के देश में, अपराधी यहाँ घूमते हैं साधुओं के वेश में, शहादत पर सेकते हैं राजनीति की रोटियां। कितना पतन हो गया है गांधी तेरे देश में, कितना पतन हो गया है ऋषिवर तेरे देश में। Miss Arzu. Honorable Speaker Madam, my fellow members of the National Academy मुझे आप पर कुछ पंक्तियाँ याद हैं। छुए सरहद तुझे जाने दो इस वतन, तेरी मौत से जाने की फुर्सत कहाँ, आबरू की वतन आज खतरे में है पर इन्हें सभा में बैठकर लड़ने से फुर्सत कहाँ। शायद आपने बचपन में इकबाल की ये पंक्तियाँ तो सुनी ही होंगी। वचन नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान का। मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि all religions are equal and they should be respected equally as we are the citizen of India. But I have been noticing for a long time that people are appraising that what a particular religion is good or bad. But I want to ask a question for you that from where you get to know about it. Because
constantly go to the Darbagah and pray to Allah while performing all the traditions. This is just because our Hindu religion is very liberal. But what's the problem? And now I would like to answer the question put by the madam. The answer is that many religious Muslim people are converting to their religion and converting them to Hinduism. This is just because they are recognized by the term Aryavata. They are just recognized by the term Aryavata. And for an example, if they want to reconnect with their roots and come back to their roots, so what's the problem in that? As NRI going to foreign countries, this is just because they are not satisfied with the particular job that they are doing. So what's wrong in that? And also, I would like to say that if you have any proof against us that we are grooming them and forcing them, so who are we to force and who are you to stop? So if you have any evidence against us, please bring forward. And your silence speaks for everything it is said. And now I would like to talk about and everything and conclude it the way that if you have that sensation from this, country change the name of Hindustan, the name of our country name Hindustan. This is just because the Hindu word originate from here. At last, I would like to conclude it the way यहाँ राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर जाति हर काम का इंसान बसता है. जो हिंदी बोलता है बस वही हिंदू नहीं, वो भी हिंदू है जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता है. ज्योति शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसा है जमाना, ये कैसे कैसे लोग, यहाँ धर्म हमारा लगा है दांव पर। पहले यहाँ कुर्बानियाँ होती थी धर्म के नाम पर, आज यहाँ इंसान बिक रहा है धर्म के नाम पर। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, आखिर कब तक गरीब आदमी धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर रहेगा? कब तक गरीब आदमी के धर्म परिवर्तन पर सरकार चुप्पी साधे रहेगी? और ऐसे ही हमारे हिंदू भाई दूसरे धर्मों में शामिल होते जाएंगे। ऑलमोस्ट ऑल इंडियंस आर कन्वर्ट टू लोअर कास्ट अनटचेबल, डिप्राइव्ड एंड Hindus convert to Islam either because they were brainwashed by or bitten by the Sufis or hearted of Brahminical Hinduism. The Human Rights Council of Pakistan reports say about 1,000 Christians convert to Islam every year. This is not only about Hindus, but Christians are also forcibly convert to Islam every year. In Bumrah, in recent years, military dictatorship has strongly encouraged the conversion of ethnic minority, often by the force. अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, कुरान भी अच्छी लगती है मुझे, गीता का ज्ञान भी मेरा है, मुझ पर बरसती है मेहरबानियाँ बहुत, अल्लाह मेरा भगवान भी मेरा है। Honorable Speaker, our Indian Constitution says the people of India having a solemn resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and its all citizens. We all have the liberty of thoughts, expression, deeds, behalf, faith and worship. परंतु ये हम पर उंगली उठा रहे हैं, कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान में जबरन बदला जा रहा है, पर
This issue is very important issue and this should not be used by political parties for their own benefit and collectively find solution for it. और अंत में मैं यह कहना चाहूँगी, जैसा कि महान कवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, मुश्किलें बनाता अपने आप की और फिर सोता न लगता है। मिस्टर ब्लू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी की बात से सहमत हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हम जबरदस्ती किसी से किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं। जब मेरे साथी ने संविधान का सवाल उठाया तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा समय दीजिए। हम देश को सुधारने में जरूर सफल होंगे। हम सबका कर्तव्य है कि देश के लिए सोचें, न कि दूसरों में कमियां निकालकर उन पर तीखे तीखे आरोप लगाएं। और हाँ, मेरे साथी ने जो बात की है वह बात आर्टिकल 25 की है, मैं उससे भी सहमत हूँ। तो हमने कब आपसे जबरदस्ती की है कि आप जाएं और धर्म परिवर्तन करें? आपको कहीं ना कहीं इसमें निजी स्वार्थ होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं उदाहरण के माध्यम से लोगों की मानसिकता दर्शाना चाहूँगी। जब आमिर खान ने मकर पांडे बनकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और भूमन बनकर ब्रिटिश सरकार से लगान माफ कराया और सत्यमेव जयते, जिसे देखकर आप काफी जागरूक होते हैं, तब आमिर खान एक देशभक्त और जिम्मेदार नागरिक था। और जब आमिर खान ने पीके फिल्म में बोरे पकड़ और अंधविश्वास को उजागर किया तो और एक देशभक्त और मजा हुआ कलाकार मुसलमान हो गया। ये मानसिकता ही धर्मांतरण का मूल रूप कारण है। धर्मो रशित रशित हो के अर्थ को पहचानो तुम तो एक मिथ्या ब्रह्मत पालो तुम। इसे लड़ने के लिए हम सबको एकता की जरूरत है। मिस्टर चैत्रिपाठी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सरकार का ध्यान हमारे समाज में हो रहे दंगों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि धर्म की आड़ में इस समाज में जो दंगे फसाद हो रहे हैं उनको बंद किया जाए। अभी हाल ही में फ्रांस में जिस कार्टूनिस्ट को मारा गया उनका धर्म से क्या लेना देना था? पाकिस्तान में इतने मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा गया, उनका धर्म से क्या लेना देना था? जो लोग इन दंगों को सपोर्ट करते हैं उनका भी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। दे आर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान हाथ जोड़कर पूजा करता है तो क्या वो हिंदू हो गया? अगर कोई इंसान हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो क्या वो मुसलमान हो गया? आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास पैसे हों और किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को पैसों की जरूरत हो तो क्या मेरा धर्म उसकी मदद करने से मना करेगा? नहीं, नहीं महोदय जी, धर्म तो इन सब चीज़ों से ऊपर है। धर्म तो एक जीने का तरीका सिखाता है बस। तो फिर क्यों जबरन यह थोपा जा रहा है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ईसाई है? क्यों चंद पैसों का लालच देकर लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, उनको आपस में लड़ाया जा रहा है? मैं यहाँ कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि धर्म का चोला पहनकर अधर्म बोल रहा है, धर्म का चोला पहनकर अधर्म बोल रहा है, पैसों में भावनाओं को तोल रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है पर खून किसी का ना खोल रहा है। मैं अपने माननीय सभासदों से कहना चाहूँगा कि धर्म को कर्म से जोड़िए, राजनीति से नहीं, क्योंकि हमें विकास की राजनीति चाहिए, धर्मांतरण की नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में ये कहना चाहूँगी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान के आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से अपना धर्म चुन सकता है और उसे अपना सकता है। और IPC के सेक्शन 295(a) और 298 के अनुसार अगर किसी नागरिक को धर्म में जात के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है तो उसके ऊपर 3 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। और जहाँ तक धर्मांतरण की बात है तो समय समय पर कानून बनाए गए हैं, जैसे गुजरात में 2003, अरुणाचल प्रदेश 1978, मध्य प्रदेश 2006। धर्म परिवर्तन के संबंध में अगर और कानून बनाने की आवश्यकता पड़े तो और कानून भी बनाए जाएंगे। जबकि साथी सदस्य को बताना चाहूँगी कि सरकार के पास धर्म के अलावा और भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि उड़ीसा की कालाहंडी में हुई भूखमरी से मृत्यु और किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या। बेहतर होगा कि हमें मुद्दों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान हाल ही की कुछ घटनाओं पर दिलाना चाहूँगी कि आज भी कुछ पिछड़े इलाकों में लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर जबरन धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जाता है कि इस्लाम धर्म अपनाने पर 5 लाख रुपए और कुछ जमीन का टुकड़ा, ईसाई धर्म अपनाने पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस रेत में हिंदू ने तो आपको पछाड़ दिया, कहते हैं हिंदू धर्म अपनाओ और BPL राशन कार्ड पाओ। तो अब क्या हमारी सरकार सिर्फ हिंदू
जी हाँ, ऐसा ही एक मुद्दा तारा का है, जिसमें टॉर्चर है, जबरन धर्म परिवर्तन कर तारा को सारा बनाने की साजिश है। वो तारा जो शादी के 6 महीने बाद ही खाड़े की चौखट के लिए चढ़ गई। ऐसे ही ना जाने कितनी तारा है जो जबरन धर्म परिवर्तन की शिकार है, पर उनकी पुकार अंधेरे में गुम हो जाती है। लगता है कानून की देवी की आंखों पर पट्टी सरकार ने अपनी आंखों पर बांध दी है। इसलिए मेरी सरकार से सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि इस पट्टी को हटाएं और ऐसे कड़े नियम बनाएं कि फिर कोई रकीबुल हसन किसी तारा को प्रताड़ित ना कर सके और ना ही कोई पंडित, मौलवी या पादरी जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करा सके। लेकिन अगर फिर भी हमारी सरकार इन मुद्दों को अनदेखा करती है तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि भूख से बड़ा मजहब और रोटी से बड़ा ईश्वर तो हो बता देना, क्योंकि मुझे भी धर्म बदलवाना है। मिस हिमांशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि यदि विपक्ष को लगता है कि सरकार धर्मांतरण के मुद्दे पर कुछ नहीं करती, तो मैं उन्हें बता दूं कि सरकार संविधान के दिखाए हुए पथ का ही अनुसरण करती है। खुद सरकार भी संविधान के ऊपर नहीं है। यदि आपको लगता है कि ये औरंगजेब का समय है कि शासन करने वाला कुछ भी कर सकता है, तो कृपया कर वर्तमान में आएं और इस बात को समझें कि यहाँ हर काम कानून के मद्देनजर ही होता है। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम स्वेच्छा से किसी भी धर्म का अनुग्रहण कर सकते हैं और कोई हमें धर्मांतरण के लिए मजबूर नहीं करेगा। और यदि लव जिहाद के अंतर्गत तारा को सारा बनाने की साजिश हुई है, तो इस सरकार ने सभी संविधान के अनुसार उसके पति रकीबुल हसन और उसकी मां से जेल में चक्की भी पिसवाई है। और आपके नए कानून लाने की बात पर मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत का संविधान सबसे लंबा है, इसमें हर प्रकार के कानून मौजूद हैं। यदि इस बात का भी आपको ज्ञान नहीं है तो कृपया अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में कार्य आरंभ करें। और मैं कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार किसी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए तो लालच नहीं देती। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये अगर सरकार के नाम पे हो रहा है तो सरकार को गिराने के जुनैदी विचार है और सरकार ऐसे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्यवाही जरूर करेगी। और सरकार विश्वास दिलाती है कि यदि किसी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो इस मुद्दे पर विचार कर हर तरह के उचित कदम उठाकर गुनहगार को सजा दिलाई जाएगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि विपक्ष यहाँ लड़ने की बजाय सरकार का साथ दे तो बेहतर होगा। धर्म और राजनीति के नाम पर सरकार पर प्रहार करना बंद करें, क्योंकि ये देश आपका भी है। इसकी नीति में सरकार का साथ दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां रखना चाहूँगी। कहीं हिंदू सिख मुसलमान के लिए, कहीं चोटी कहीं कृपाल के लिए। दंगों से तो देखो मेरा देश जल रहा है, भैया कुछ तो सोचो हिंदुस्तान के लिए। भाषा भाषी झगड़े जुबान के लिए, कहीं धर्म या तीर्थ खान के लिए। दंगों से तो देखो देश मेरा जल रहा है, अरे लोगों कुछ तो सोचो हिंदुस्तान के लिए। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ, क्या बनाने आए थे क्या बन बैठे, क्या बनाने आए थे क्या बन बैठे।